New husband murder story in New Patriarchal India. This month, we witnessed the horrific husband murder case from Meerut, where a merchant navy man named Saurabh Rajput was brutally murdered by his wife Muskan Rastogi and her drug addict boyfriend Sahil Shukla. Now, another shameful and outrageous case has come to the fore from Uttar Pradesh's Auraiya district, where a newly married bride got her husband bumped off within 2 weeks of the marriage. What was this case about? 22-year-old Pragati Yadav got married to 25-year-old Dilip Yadav on 5th of March this year. But this marriage had taken place against the wishes of Pragati, who was already involved in a romantic relationship with a man named Anurag Yadav for the past 4 years. Since Pragati was unhappy with this forced alliance by her parents, she and Anurag hatched a plan of murdering Dilip just within 2 weeks of the marriage. On 19th March, Dilip's body was found lying severely injured with bullet wounds in a field. While he was rushed to the community help center in Biduna for treatment, he was then shifted to a hospital in Gwalior in Madhya Pradesh as his condition worsened. Sadly, Dilip succumbed to his injuries and died a day later on 20th of March. Following this incident, the victim's brother filed a complaint at the Sahar police station. When the police investigated the matter, they zeroed down on the victim's wife and her lover as main culprits in this murder. As per police officials, Pragati and Anurag were unable to meet each other after marriage, and thus they decided to get Dilip eliminated. The accused then hired a contract killer named Ramaji Chaudhary, who was paid rupees 2 lakh to do the job. Subsequently, Ramaji, along with some other people, took Dilip to the fields on a bike, and after they reached there, they started beating him and later shot him. Once the job was complete, the contract killers immediately fled from the scene. Police were able to nab these murderers through CCTV footage. They also seized 2 pistols, 4 live cartridges, a bike, 2 mobile phones, 1 purse, Aadhaar card, and rupees 3,000 from these accused. Now, post these dreadful revelations that emerged from the police investigation, Pragati's brother has spoken to the media seeking punishment for his sister. Speaking with ANI, the wife's brother said, "Those who are the culprit should be punished. If my sister is involved, then she should be punished too. Our family is not involved in this." क्या नाम है आपका? आलोक कुमार। आलोक जी, अभी आपकी बहन की शादी हुई थी और अब पता चला है कि जो है कि उसने अपने फ्रेंड के साथ मिलकर हत्या करा दी, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? इस मामले में मुझे जो जानकारी है, जो सूचनाएं मिल रही हैं, वो सूचनाएं गलत। जो शादी हुई है वो लड़की और लड़के की रजामंदी से, दोनों परिवार की रजामंदी से शादी हुई है, और जो इन्होंने घटना घटित की है, इसमें जो दोषी है उसको उचित न्याय मिले, उसको ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा मिले। जो पुलिस की जो थ्योरी बता रही है कि उसमें जो है आपकी बहन भी शामिल थी, तो बहन को भी सज़ा दी जाए। बहन तो उसमें शामिल है, और जो लड़के शामिल उनको सज़ा दी जाए। इसमें हमारे परिवार का, घर का कोई दोष नहीं है, और हम लोग इसमें लिखित में भी दे देंगे। मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं। बहन जो आपकी थी, क्या पहले से पता था कि उसका कोई? नहीं, इस बारे में कोई जानकारी नहीं। On the other hand, the accused boyfriend, Anurag's sister, has also come forward, demanding justice for the victim Dilip. Speaking with ANI again, she said, "If my brother is involved in this, then arrest him. He should be in jail." भाई का भी नाम है, क्या कहना चाहेंगे आप? इसमें अगर मेरे भाई कहाँ थे, उसको गिरफ्तार कर लीजिए। क्या पहले से पता था कि इस लड़की से आपके भाई का कोई संबंध है? ये नहीं, घर में किसी को मालूम नहीं था। अगर किसी को मालूम हो, ये करने देगा किसी का माँ बाप? बहन भी होगी, ये भी नहीं करने देगी। मर्डर कोई करने देगा? ये बताइए। प्रगति के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हमें कोई जानकारी नहीं। जिसने अपने जो है पति की हत्या की, वो आपके गांव में कई साल से रह रही थी, कैसा व्यवहार था उसका? ये हमें कोई जानकारी नहीं है। तो अब आप क्या मांग करेंगी? अब आपके भाई को पुलिस ने पकड़ा है, तो क्या मांग करेंगी कि जिसकी हत्या हुई उसको किस तरीके से इंसाफ मिले? इंसाफ हम क्या बताएं आपको, बताइए। अगर मेरे भाई कहाँ थे तो उसको जेल भेज देना चाहिए। भाई का पहले कोई आपराधिक इतिहास तो नहीं रहा? किसी से नहीं रहा। व्यवहार कैसा था अनुराग का? अच्छा था। कोई क्या काम करता था भाई? अभी कुछ नहीं, पढ़ाई कर रहा था। किस क्लास में? BSc अभी कंफर्म हुई है, फाइनल। Speaking with ANI, Auraiya Superintendent of Police Abhijit R. Shankar said, the police received information about an injured person on 19th March. On receiving information, the police immediately reached the spot and took the injured to the hospital. The victim had been identified as Dilip Yadav,
After the person died during treatment, a murder case was registered against an unknown person. Adding further, the Superintendent of Police said, the police began investigating the matter. They identified one person from the cameras installed near Ramji Nagar and deployed teams to look after him. He was arrested on Monday along with his aide. It was found that the aide, Anurag Yadav, was in a relationship with Dilip's wife, Pragati, for past 4 years. Anurag planned the entire murder on the instructions of Pragati, after which they hired the contract killers for rupees 2 lakh to execute this crime. Search for other people involved in the crime is also underway. जनपद औरैया का थाना सहार क्षेत्रांतर्गत गेहूं का खेत में एक आदमी घायल अवस्था में पड़े होने का सूचना 19 तारीख को पुलिस को 112 के माध्यम से मिला था। सूचना मिलने पर तुरंत ही पुलिस मौके पर पहुंचकर घायल व्यक्ति को तुरंत इलाज के लिए हॉस्पिटल भेजा गया था, जहां पर उनका पहचान दिलीप यादव का हुआ है, जो हाल में दिव्यापुर में रहता था और मूलतः मैनपुरी का निवासी था। प्रस्तुत व्यक्ति का घायल होने और घायल अवस्था में मिलने का लेकर मुकदमा अपराध संख्या 44/25 अंतर्गत धारा 109 BNS पुलिस द्वारा पंजीकृत किया गया था। और जब घायल व्यक्ति का देहांत हो गया था, संबंधित मुकदमा को तरमीम करके 103(1) BNS जो मर्डर का धारा है उसमें लिया गया था। एकदम अज्ञात के खिलाफ दिया गया था और एकदम ब्लाइंड मर्डर केस था ऐसा। तो इसी केस में तुरंत ही थाना सहार का पुलिस और जनपद औरैया का SOG द्वारा संयुक्त टीम से विवेचना शुरू किया था और ऑपरेशन त्रिनेत्र में लगी कैमरास के मदद से हम लोग आइडेंटिफाई किया कि दिलीप यादव को अपना हाइड्रा से जब लेके आ रहा था, एक मोटरसाइकिल पीछा कर रहा था और कुछ समय बाद 3 व्यक्ति द्वारा उनको बीच में बिठा के लेके जा रहा था। तो प्रस्तुत CCTV फुटेज के आधार पर हमारे मुखबिर तंत्रों से सहारा लेकर हम लोग आइडेंटिफाई किया इसमें से एक व्यक्ति को, जिसका नाम रामजी नागर। तो उसको फिर हम लोग मुखबिर तंत्रों से उनका लोकेशन लेते हुए गिरफ्तारी करने हेतु टीम लगाया गया था और उनको आज दिनांक 24/3/2025 को अर्ली मॉर्निंग लगभग 12:40 पे इनको और इनका एक साथी को गिरफ्तार किया गया। इन दोनों से एक 315 बोर का तमंचा और 2 जिंदा कारतूस ईच मिला है। पूछताछ करने पर यह पता चला उनका सहयोगी जो साथ में था, उनका नाम अनुराग यादव है, जो कि मृतक दिलीप यादव का पत्नी प्रगति यादव का सेम गांव का रहने वाला है और प्रगति यादव से लगभग 4 वर्षों से उनका प्रेम प्रसंग चल रहा था। गहराई से और पूछताछ करने पर यह ज्ञात हुआ कि अनुराग यादव ने प्रगति यादव का चलते हुए इशारा करते हुए ये पूरा हत्या का प्लानिंग किया है। प्रगति यादव और अनुराग यादव के बीच में गहराई से प्रेम प्रसंग था और साथ में रहने के लिए अपना पति को रास्ते से हटाने के लिए अनुराग को प्रगति ने 1 लाख रुपए भी पहले दिया था और अनुराग यादव ने रामजी के साथ 2 लाख रुपए में सौदा किया था कि इनको हत्या करें। इसी तहत जो घटना का दिनांक है 19 तारीख को व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से प्रगति यादव द्वारा अपना पति का लोकेशन भी अपना प्रेमी को पास ऑन किया था, जिसको आगे चलते हुए अनुराग ने जो दूसरा रामजी है उनको बताया था और उन लोग पीछे लेके ये मर्डर किया था। इस विषय पर और कुछ लोगों को पुलिस द्वारा आइडेंटिफाई किया गया है, जिसका नाम अभी गोपनीयता का कारण हम लोग पब्लिक में नहीं बताया जा रहा है। इसके अलावा भी और कोई लोग इसमें इन्वॉल्व है, कॉन्स्पिरेसी में और कोई इन्वॉल्व है, इसका भी जांच किया जा रहा है। अभी फिलहाल पुलिस द्वारा कॉन्स्पिरेसी में जो मुख्य रूप प्ले किया है मृतक का पत्नी का प्रेमी और हत्या में शामिल व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। तीनों व्यक्तियों को पुलिस द्वारा हिरासत में लेकर न्यायालय के सामने पेश कराकर आवश्यक विधि कार्य किया जाए। सर कब शादी हुई थी? अभी 5 तारीख में ही मृतक का शादी हुआ था। Keep following us on our social media handles, that is X, Instagram, Facebook and Telegram. The ID is @VoiceForMenIn. If you're active on LinkedIn, you can follow our handle Voice for Men India. You can also read several other articles and judgments on our website voiceformenindia.com. If you find value in our videos, do consider giving us a like and sharing the same ahead to spread awareness. Lastly, do hit that bell icon and subscribe to YouTube channel Voice for Men India for regular updates. That's it from me as of now. Thank you very much for watching. Namaste. Jai Hind.